ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ SHO ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ SHO ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ सरदार ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੜ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋੜਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਨੋਇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਵਰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮੇਤ ਲੇਡੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਮ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰੰਤੂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ SHO ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਥਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ। ਸਰ ਬੋਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਆਈ ਐਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦਾ? सर ये
पेशेंट सीवियर कोरोना से इसके लंग्स डैमेज हो गए, ये मैक्सिमम वेंटिलेटर सपोर्ट पे था। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शंस होती हैं ऐसे पेशेंट्स में, जिससे लंग डैमेज के अंदर बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करती है, और ये बेहतरीन से बेहतरीन एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल देने के बावजूद मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की ओर प्रोग्रेस करता है। बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ही बॉडी को अटैक करती है, ये वायरस का किलिंग मैकेनिज्म है। अब कोरोना से ग्रस्त पेशेंट मेरे पास 27 तारीख से एडमिट है। इसको हमने 5 दिन पहले तक बिना वेंटिलेटर के हाई फ्लो पर मेंटेन किया था। पेशेंट के परिजन जितने आज डिससेटिस्फाइड हैं, ये उतने ही डिससेटिस्फाइड उस दिन भी थे, जबकि तब पेशेंट 8 या 10 लीटर ऑक्सीजन फ्लो पे था। उन्होंने एक हॉस्पिटल है पड़ोस में, मुगट हॉस्पिटल, वहाँ बात की। डॉक्टर टी.एस. क्लियर, एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट दिल्ली से, उनका मुझे फ़ोन आया था। मैं कहा सर पेशेंट शिफ्टेबल है, आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, अच्छी एम्बुलेंस भेजिए, ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, ये पेशेंट शिफ्ट हो जाएगा। उनके एम्बुलेंस में जो स्टाफ आया, थोड़ी देर उसको एम्बुलेंस में रख के बोला कि पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, हम लेके नहीं जाएंगे, और वो पेशेंट छोड़ के भाग गए। मैं और हमारा स्टाफ वहाँ भाग के देखा, इसकी सैचुरेशन 25-30 पे आ गई थी। इसको हमें गले में ट्यूब डाल के उस मौके पर इसको वेंटिलेटर में डालना पड़ा। तो इनकी उस शिफ्टिंग में पेशेंट को जो सफरिंग हुई, जो डैमेज हुआ, वो उनकी वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पे गया। अदरवाइज सर मेरे को पूरा करने दें प्लीज़, सर प्लीज़ मुझे पूरा करने, आप सुन लें उसके बाद बात करते हैं। मैं एक फ्लो में बोलता हूँ, मैंने ट्रीटमेंट हिस्ट्री जो जैसे होती है बतानी होती है, मुझे बताने दें, मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। उसके बाद ये पेशेंट वेंटिलेटर पर रहा। वेंटिलेटर पर इसको सेप्सिस पहले ही था, इन्फेक्शन पहले ही थी, तो इसकी जो वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट्स थी वो बढ़ती रही। बीच बीच में हमने कोशिश करके वेंटिलेटर सपोर्ट कम करते रहे, पर ऐसे में जब लंग्स बिल्कुल काम नहीं करते हैं तो सैचुरेशन 100% ऑक्सीजन और वेंटिलेशन के बावजूद गिरनी शुरू हो जाती है। गिरते गिरते वो फिर पेशेंट अरेस्ट हो जाता है। तो यही वाकया हुआ, और ये कोविड के 18-20 दिन के बाद डेथ का एक नॉर्मल तरीका है। मीन्स जो पेशेंट्स को इतनी देर तक ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेशन की, वो ऐसे मर जाते हैं। कितनी डेथ हुई है आज की डेट में? सर जी कोई आज तो पहली डेथ है जी। अच्छा है। हाँ जी। एक इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपने उनसे 10-12 लाख रुपया ले लिया, लेकिन सर हॉस्पिटल ने एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमने ट्रांसपेरेंट बिलिंग के तहत जीएसटी पेड इनवॉइसेस 1-1 रुपये की उनको दे दी हैं। आप प्लीज़ बिल पढ़ लीजिए, और अगर उस बारे में कोई भी शिकायत है तो डिस्कस की जा सकती है। देयर अथॉरिटीज फॉर दैट। सर उनका आरोप ये है कि पेशेंट उनकी पैसे लेने की वजह से आपने पेशेंट को शिफ्ट नहीं करने दिया। नहीं, पैसे मांगते थे आप? नहीं, मैंने शिफ्टिंग के लिए इनको पूरा कोऑपरेट किया। मैंने इनको उससे पहले काउंसिल किया था कि आपका पेशेंट बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर रहा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने इनको 5 दिन पहले बता दिया आपका पेशेंट बहुत सिक है, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, इसकी जो आशा थी इस प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आपको पेशेंट बहुत इस बात से घबरा के कहा हम इसे और शिफ्ट चाहते हैं, वो आपका चॉइस है, आपकी प्रेरोगेटिव है, वी विल कोऑपरेट। सर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जी, मारपीट में उतरे हुए, देखा नहीं आपने, पुलिस के कपड़े फाड़ रहे हैं, हर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, इनसे कैसे बात की जा सकती है? परसों भी एक गड़बड़ी हुई थी वैसे ही। सर हॉस्पिटल में पेशेंट्स की डेथ होती है। हमारे देश में ये चलन बन गया है कि मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के तमाशा बना के पेश करता है। तो उन लोगों की शय पर हॉस्पिटल को हरास करने के लिए ये टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, जो कि बेहद दुख का कारण है। इससे हॉस्पिटल्स को जेन्युइन काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप ऐसी चीज़ें दिखाते जाइए। बहुत से हॉस्पिटल्स ने वेंटिलेटर वाले सिक पेशेंट्स को लेने से मना कर दिया है। हम पर भी बहुत प्रेशर है कि हम इतने बीमार पेशेंट्स ना लें, और फिर ऐसी स्थिति में लोगों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने पेशेंट आपके पास कोरोना पेशेंट? हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है कोरोना की? बता देंगे सर, थैंक्स बता देंगे, जितनी आज की लिस्ट है बता देंगे। वेंटिलेटर से भी ऊपर है एक आपने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन की फैसिलिटी मेरे पास है, वो इन पेशेंट्स से यूज़ की जा सकती है। उसके लिए पेशेंट को मैंने काउंसिल कर दिया था कि ये यूज़ किया जाएगा, मगर वो तब किया था जब पेशेंट को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और सेप्सिस ना हो। ये पेशेंट उसमें जा चुका था और इसमें वो बनता नहीं था, और अगर हम किसी में लगाते भी है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, 25-30 लाख का खर्च उसमें आ जाता है। ये पेशेंट पहले भी किसी और हॉस्पिटल से ट्रांसफर आया था कि सीधा आया था? सर ये कहीं से रेफर होकर आ रहा था, 4-5 दिन पहले भी किसी हॉस्पिटल में था। मैं रिकॉर्ड देखे थी, से बता दूंगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी, पर ये 5 दिन कहीं से इलाज करा के आया था, वहाँ भी डिससेटिस्फाइड था, और उसके बाद ये थोड़ी देर इंप्रूव किया, और उसके बाद फिर एक प्लेन कोर्स के बाद इसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई, जो कि इन्फेक्शन से और अनरिलेटेड कोविड से पेशेंट्स में होती है। सर कारण क्या है कि लोग जो आपके इलाज से सेटिस्फाई नहीं होते उसके बाद हंगामा होता है, ये कारण क्या है? सर ऐसा हमारे इलाज में कोई कमी नहीं है। पेशेंट्स देखिए सर, हर आदमी प्रेशर में है। जिस घर से यंग पेशेंट्स मारे जाएंगे बीमारी की वजह से, कुछ परिजन हॉस्पिटल पर अपना गुस्सा उतारते हैं। 10 लोग चले जाएंगे आराम से, एक पेशेंट उस पर कहता है। अब एक पेशेंट हमारे पास रात को 12 बजे आया, उसको सांस नहीं आ रही थी, हमने वेंटिलेटर डाला, 2 घंटे में डेथ हो गई। अब वो लोग कहते हैं जी हमने वेंटिलेटर के बावजूद मर गए।
अरे भाई तुम 8 दिन से सेक्टर 16 में बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के थे, पेशेंट डिकम्पनसेट हो गया, बीमार हो गया, अपनी बीमारी से डेथ हो गई। हमने सोसाइटी में पेशेंट्स के भले के लिए काम करना है। अगर उस इलाज के दौरान पेशेंट्स की मौत होती है तो हमारे ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी से आप बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दीजिए। मीडिया में तमाशा बनाना, हम पर प्रेशर करना, हॉस्पिटल तोड़फोड़ करनी, ये नाजायज़ काम है। इन्होंने हॉस्पिटल में दंगा डाला है, उसके ऊपर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई बनती है। हम लोग इसलिए नहीं करते कई बार कि इनको पहले दुख हो चुका है, हम ना करें, बट अब हम इस पर पूरा विचार कर रहे हैं कि इनके खिलाफ हॉस्पिटल में राइटिंग करने, मारपीट तोड़फोड़ करने के लिए इन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर आपने एक बात कही कि मीडिया की शय पर ये लोग हंगामा Yes. कर रहे हैं। एक मिनट सर, तो उसके लिए आप जब तो आपको प्रमोशन चाहिए होती है तो आप मीडिया को बुला के अपने अस्पताल की प्रमोशन करते सर हो। मेरे को ना और ऐसे में आप- कल मैंने एक आइटम पढ़ा मीडिया में जी, एक मेरे को न्यूज़ पढ़ा मीडिया में जिसमें वो कहते कि देखिए सर, हर तरह की वी आर नॉट पुटिंग अ गैग ऑन रिपोर्टिंग। मैं नहीं कहता कि आप रिपोर्ट ना करें, अपना दिखाएं। मेरा सर ये कहने का आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि सार्थक वे में दिखाएं जिससे सोसाइटी का भला हो। अपने दिल पे हाथ रख के सोच लें कि अगर आपने ये रिपोर्ट दी तो क्या सोसाइटी का फ़ायदा है, क्या हॉस्पिटल्स का और पेशेंट का भला होता है। अगर आपको लगता है तो जरूर रिपोर्ट करें। और अगर सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट करना है, वेल यू आर हमारा काम है सर लोगों की आवाज़ उठाना है ना। उठाओ नहीं सर। उठाएंगे जरूर उठाओ सर, जरूर उठाओ सर। बहुत कुछ उठ जाएगा उसके साथ। अटेंड कर दी आपकी, आपको याद हो गया ड्यूटी। द पॉइंट इज दैट व्हेन जब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी का कोई पेशेंट जाता है तो उनमें से अब इतने पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं। हमने इस एपिसोड के बाद भी अपने जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको बुला के कहा कि भाई आप लोग प्लीज़ डिस्चार्ज ले लो। लोग हमारे पैर पड़ गए कि सर अगर आप हमारा इलाज नहीं करोगे तो कहाँ हमारा इलाज होगा। हमने कहा भाई आप प्लीज़, ये मीडिया अभी आया है, आप बाद में जो इन्हें बुलाओगे इनसे प्लीज़ मिल के आप ये बात उनको उजागर कर दें। अगर आप करना चाहते हैं कि जी आप किसी तरह से भी डिससेटिस्फाइड, प्लीज़ टेल, सो दैट हम भी अपने आप को इम्प्रूव करें। और रही बात, ने बताया कि अभी 8 दिन से वहाँ पे ऑक्सीजन पे नहीं था 16 सेक्टर में, आपके यहाँ आते डेथ होगी। आपको पता जब इतना क्रिटिकल है तो आपने पैसे के लिए उसको एडमिट किया? नहीं, अब मैं बताता हूँ सर, अगर हमारे गेट पे पेशेंट आता है, हमने ये जो आप परसों के पेशेंट की बात बता रहे हैं, वो 8 दिन से ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, दे वर बेगिंग फॉर अ वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के लिए उनको कहीं जगह नहीं मिली तो हमें एक सीनियर डॉक्टर साहब उनके नोन थे, उन्होंने रेफ़र किया, उन्होंने कहा कि सर इन्हें प्लीज़ दे दीजिए, गिव हिम अ चांस टू लिव। उसको एक्सप्लिसिट बताया गया कि आपके पेशेंट की ये हालत है, 25 पे इसकी सैचुरेशन है। ऐसी बात नहीं है, 5 पे सैचुरेशन वाले भी वेंटिलेटर लगाने के बाद बाहर आ जाते हैं। एज अ डॉक्टर इज़ फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग, ही कैन नॉट, इफ़ ही हैज़ अ वेंटिलेटर, ही हैज़ अ बेड, इट इज़ हिज ड्यूटी टू पुट इट ऑन दैट पेशेंट। तो उस ड्यूटी के तहत हमने उस पेशेंट को रिवाइव किया और वो 2.5-3 घंटे तक रिवाइव हुआ भी, उसके बाद ही कुडंट सर्वाइव।